So now let's take the next question. The question is, a circle with center 2, 3 and radius 4 intersect the line x plus y equal to 3 at point P and Q. If the tangents at P and Q intersect at S alpha comma beta, then what is the value of this? Basically आपको point of intersection of tangents find करना. So the question is, let's say this is the circle whose center is 2, 3. This is the center 2, 3. This is the center of the circle and its radius is 4. इसका radius is 4. The question is, a line x plus y equal to 3 intersected at P and Q. This is the line, let's say x plus y minus 3 equal to 0. Correct? At P and Q, तो ये P और Q पे से intersect कर लिया इसको. Now the tangent to this intersect at S. तो आपने P पे tangent draw किया and आपने Q पे tangent draw किया. They are intersecting at S. Then you have to find the coordinate of this. This is alpha कॉमा बीटा. ठीक है, आपको अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो आपको पॉइंट पी और क्यू को पता नहीं है. अब वन वे टू सॉल्व दिस इज आप पॉइंट पी एंड क्यू फाइंड करो बाय सॉल्विंग दिस सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. बट वो बहुत कैलकुलेटिव प्रोसीजर होगा. ठीक है, तो विदाउट इवन फाइंडिंग पी एंड क्यू यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज वी नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू बाय कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट. बिकॉज फॉर एस this point line PQ is the chord of contact. What is the chord of contact? Tangent के point of intersection को point of contact को हमने join किया. This is the chord of contact. And what is chord of contact of a circle? Chord of contact is PQ and we know what is the equation of chord of contact? T is equal to 0. This is the chord of contact, right? So अब let's see. इसका equation पता है आपको and we can find the equation of PQ by using T equal to 0. हम कंपेयर कर लेंगे, we'll get the answer. तो इसके लिए आपको पहले सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा. तो what is the equation of circle? Equation of circle is x minus 2 square plus y minus 3 square. Center 2, 3, right? And radius is 4. तो ये r square मतलब 16 होगा. So this is x square plus y square minus 4x minus 6y and this is 4 plus 9 minus 16 is equal to 0. So what is the equation of the circle? This is x squared plus y squared minus 4x minus 6y or this is minus 3 equal to 0. This is the equation of circle. And you can see for this circle, what is the equation of chord of contact PQ? This is T equal to 0. तो व्हाट इज टी इक्वल टू 0? रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स एक्स वन. ये एक्स वन वाई वन, इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करना है. तो रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर विद वाई वाई वन माइनस रिप्लेस एक्स विद एक्स प्लस एक्स वन बाई टू. तो ये क्या हो जाएगा? बाई टू के कारण टू ये कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 एक्स प्लस अल्फा माइनस ये 6 वाई प्लस बीटा बाई टू. तो माइनस 3 होगा. दिस इज 3 वाई प्लस बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. वो 2 और 6 कैंसिल कर दिया और 4 हमने यहाँ का डिनोमिनेटर का कैंसिल कर दिया. ठीक है, सो इफ आई अरेंज दिस यू कैन से दिस इज अल्फा एक्स और ये माइनस 2x. दिस इज अल्फा माइनस 2x प्लस बीटा, यहाँ से बीटा, दिस इज बीटा माइनस 3y एंड हियर यू विल हैव माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा और ये माइनस 3 इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या आ गया? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू. दिस इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टी इज इक्वल टू 0. करेक्ट. बट देखो आपको पी क्यू का इक्वेशन तो गिवन नहीं है बिकॉज इट इज गिवन दैट दिस पी क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड सर्कल. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पी क्यू? दिस इज एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ पी क्यू. दैट मीन्स यू कैन से दीज टू इक्वेशन मस्ट बी identical because both are representing same line. So what is the condition for two equations to be identical? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो अब हम वो अप्लाई कर देते हैं. So this is now if I apply this, so now I think let's remove this. अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है. This is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? देखो माइनस 2 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3 डिवाइड बाय माइनस 3. ठीक है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 कंडीशन फॉर आइडेंटिकल इक्वेशन.
अब आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ लेट्स टेक वन इक्वेशन इज अल्फा, इसको इनको कंपेयर कर लेते हैं। दिस इज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन इफ आई टेक दीज टू। ठीक है, इफ आई टेक दीज टू, तो व्हाट इज द इक्वेशन, इसको अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को देख लेते हैं। दिस इज माइनस तो कैंसिल कर दो, दिस इज 3 बीटा माइनस 9। ठीक है, दिस इज 3 बीटा माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। सो व्हाट इज दिस, ये 3 बीटा तो कैंसिल ही हो गया, दिस इज 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 6। सो अल्फा का वैल्यू माइनस 6 हो गया। एंड व्हाट इज बीटा, अल्फा का वैल्यू माइनस 6 पुट कर दो, दिस इज माइनस 6 माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। सो अल्फा एंड बीटा दैट आर दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने फाइंड करने थे। करेक्ट, अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज अल्फा इज माइनस 6, so दिस इज माइनस 24। ठीक है, और बीटा इज माइनस 5, so दिस इज माइनस माइनस प्लस 35। so what is the answer, this is equal to 11। so this value is equal to 11। ठीक है, so this is very important question। कभी भी आपके पास अगर लाइन किसी सर्कल को या किसी पैराबोला को या हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड आपको टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो डायरेक्टली यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आस्क्ड इन जेईई ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। करेक्ट।